Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. This is the second and the last lecture of the chapter 1.4 Pillars of Democracy, written by our constitution maker Dr. B.R. Ambedkar. In the last lecture we had seen of this chapter introduction. Then we had seen about the writer and the chapter. Later on, we had seen summary of pillars of democracy, and lastly, we had seen line by line explanation of the chapter. However, that is not yet complete. So today, what we are going to do, it is listed in this slide. Please see properly. Firstly, we will complete line by line explanation of this chapter. We will understand this chapter very properly because it is very much required. In that we will do all the hard words which will come, we will solve there only. Secondly, we will do icebreaker questions to know this chapter more properly. So without wasting time, let's move on to the line by line explanation of the chapter from where we stopped. From there we will start. So please see फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड. आई थिंक वी हैड स्टॉप्ड अप टू हीरो वर्कशिप. हीरो वर्कशिप का एक एग्जांपल भी बता देती हूँ, जैसे कि लाइक वी हैव अ ग्रेट एडमायरेशन, लाइकिंग, एक्सेसिव लाइकिंग फॉर सचिन तेंदुलकर. ठीक है, तो फिर आपने देखा होगा कुछ लोग सचिन तेंदुलकर को मंदिर में रखते हैं, उनका मतलब मंदिर में फ़ोटो उनका रखते हैं, उनका पैर ऐसा टच करते हैं. ये सब क्या है? ये हीरो वर्कशिप है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, समझा ना? हीरो वर्कशिप मतलब कि एक्सेसिव लाइकिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, हाँ, पर्टिकुलर पर्सन इज़ डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी के लिए कुछ काम अच्छा कर रहे, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज़ रियली केयरिंग फॉर द सोसाइटी. बट आप उसको हीरो वर्कशिप करते हो, लाइक गॉड और गॉडेसेस की तरह मंदिर में उनका फोटोज़ रख के उनको वर्कशिप करते हो, सो दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, सो दैट्स वाई बी आर अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट ऑफ हीरो वर्कशिप. Plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. तो यहाँ तक हमने देख लिया था that if hero worship is done, it is very difficult for our Indian society. So that part we had seen. Now moving further, if you would see what we had to do, hero worship is very dangerous for the society, as B.R. Ambedkar was saying. As in this quote you can see, he is saying also that bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. अगर आप भक्ति करते हो गॉड गॉडेसेस की, तो वो करने से आपको सैल्वेशन मीन्स फ्रीडम मिल सकता है फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड टेंशन. बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, हम जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर भक्ति करते हो, तो ये एक पॉलिटिक्स हो सकती है. और हीरो वर्कशिप उसी को कहते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन अगर हमारे कंट्री का है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक क्रिकेटर का एग्जांपल दिया कि सब रॉन्ग है. ठीक है, तो ये सब करने से अगर आप देखोगे, इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंड इट इज़ गोइंग टू डिग्रेड एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू द डिक्टेटरशिप. और ये हमारे बी आर अम्बेडकर सर ने कोट किया था. सो दैट हियर इट हैज़ बीन सेड. Moving, if you would see, he is saying, but in politics, bhakti in hero worship is a short road to degradation. Degradation meaning दिया है cause something to become worse in इनक्वालिटी. और हमारा जो नेशन का जो पॉलिटिक्स है, इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंड इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू लीड टू द डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? रूल्ड बाय वन पर्सन. तो ऐसा मत होने दो कि ओनली वन पर्सन इज रूलिंग. आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, एक कोई कैरेक्टर रहता है जिसको सब लोग भगवान जैसे पूछते हैं, दे वर्कशिप लाइक अ god or goddesses. So this is just a wrong thing in India, especially in the field of democracy, especially in the field of politics. Moving further, B.R. Ambedkar sir is saying on the 26th of January 1950. आपको सबको ये डेट बहुत अच्छे से रिमार्केबल है, याद है, because it is the day when we had become republic, and from that day the constitution of our India is been implemented and we started using this constitution, that is the rights given by these important people. So 26 January 1950 is the Republic Day. From there we had started celebrating. So from there we are going to enter into a life of contradiction. Contradiction, please underline the word and write down the meaning. Something being complete opposite. अभी ये जब उन्होंने ये स्पीच दिया था इन द
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पार्लियामेंट में जब उन्होंने ये स्पीच दिया था, वो टाइम पे इंडिया रिपब्लिक नहीं हुआ था। तो वो बोल रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब हम ये होंगे, रिपब्लिक होंगे, तो एक अलग नेशन हमको दिखेगा, वेयर समथिंग अपोजिट, कंप्लीट अपोजिट वी आर गोइंग टू सी, जहाँ पे अब हमारा नेशन डेमोक्रेटिक हो जाएगा। नाउ वी ऑल ह्यूमन बींग आर हैविंग द इक्वल राइट्स, देर इज़ नो कास्टिज्म, बैरियर्स और प्रॉब्लम्स, और रिलीजन वाइज कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। Especially in politics, we will have equality in social and economic life. बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि जब भी ये यू कैन सी दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 को, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे सबके थॉट चेंज हो जाएंगे। ऑल ह्यूमन बींग आर नाउ एंजॉइंग सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड दैट वुड बी द इक्वल राइट्स दैट वी आर utilizing, and we will have we can say no inequality is there in the society. हमारे नेशन से जो inequality का जो एक परत जो बोलते हैं एक लेयर है ना, it is going to be just taken out if we are utilizing the constitution, because in front of the constitution all human beings are equal and all are same, equal, and there is no superior or inferior, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote. B.R. Ambedkar is saying कि अब constitution अब जब लागू हो जाएगा, when it has been implemented, we can say that we are following the principle, that means the rule of one person who can vote one vote only. एक person का अधिकार है एक वोट देने का, एक वोट से ज़्यादा नहीं। एक मैन है वो एक वोट देगा, और वो एक वोट देने से एक वैल्यू उसका हो जाएगा। मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ह्यूमन बीइंग वैल्यू इज इक्वल एंड ऑल आर हैविंग द इक्वल वैल्यू। चाहे वो कितना भी रिच होने दो, चाहे वो कितना भी पुअर होने दो, उसको एक ही वोट देने का है, और उसका जितना वैल्यू है, जितना अगर रिच का वैल्यू उतना पुअर का भी वैल्यू है। सो ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट बी आर आम्बेडकर इज टीचिंग अस थ्रू हिज स्पीच। In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. और सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग को ये अब रियलाइज़ करना है कि हर एक पर्सन का एक वैल्यू है, कि इम्पॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। एक पर्सन, जैसे एक वोट का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, सेम वे उसका वैल्यू भी एक पर्सन का उतना ही है। हाउएवर दैट पर्सन इज़ वेरी पुअर, हाउएवर दैट पर्सन इज़ वेरी रिच, ऑल आर हैविंग द इक्वल राइट्स, इक्वल इम्पॉर्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? कब तक हम लोग ये लाइफ में ऐसा जिएंगे, वेयर यू कैन सी देयर इज़ अ कास्टिज्म, यू नो, कास्ट के नाम पे आप हम लोग को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हो on the name of the casteism, religion, you know, culture, tradition. Why we differentiate each other? Why there is not the sense of belongingness? हम लोग में एक sense of belongingness, togetherness, why it is not there? Every time we are fighting for our caste, regionalism, religion, ये सब पे कब तक हम लोग fight करते रहेंगे? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? कब जाके हम ये समझेंगे that in society, if we want to survive, we should be understanding the importance of equality, that we all human beings are equal in front of constitution, and we should utilize our duties, our rights given by constitution, then only we are going to get the success in our life. So social और economic life को पटरी पे बराबर लाने के लिए, और for example if you want to make our India nation develop in sense of society, in sense of economic condition, so what is required most is none other than we have to understand the importance of equality. If we continue to deny it for long, अगर हम लोग equality के importance को नहीं समझ पाते हैं, अभी भी सोच रहे कि नहीं equality नहीं होना चाहिए, we will do so only by putting our political democracy in peril. अगर हमने ये importance equality का जो शब्द है, इसका अगर हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो महत्व है, द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, देन if we do not understand, it is going to destroy our political democracy.
in peril. Peril means danger. We are going to put forth our democracy in danger. So it is the need of the hour that we should utilize our constitution rights or duties given by B.R. Ambedkar sir. B.R. Ambedkar sir is teaching us through this speech that we should understand the importance of social equality, कल्चरल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एवरीवेयर. तो इक्वालिटी जो शब्द है ना, उसका इंपॉर्टेंस हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, सब हम एक है. ये चीज़ वो सिखाना चाह रहे हैं. वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रडिक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट और एल्स दोज हु सफ़र फ्रॉम इनइक्वालिटी विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ political democracy which this assembly has so laboriously built up. यहाँ पे और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि ये जो हम कॉन्ट्रडिक्शन वाले लाइफ में जी रहे हैं ना, कि जहाँ पे कास्टिज़म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लैंग्वेज है, रिलीजन है, इसको जो हम महत्व अगर दे रहे हैं सोसाइटी में, तो ये एक दिन जाके इट इज़ गोइंग टू ब्लो अप, ब्लास्ट हो जाएगा. इट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा. कब तक हम लोग शोषण करवाते रहेंगे या करते रहेंगे? एक दिन ना एक दिन कोई ना कोई खड़ा होके चिल्लाएगा कि हमें नहीं चाहिए ये सब. तो ये टाइम आ गया है कि हम अपने सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से इसको निकाल फेंके, वेयर नो upper caste, lower caste, middle class would be there. There is only one caste, that is constitution rights that we all have to follow in our life. तो ये सिखाना चाहते हैं बी आर आम्बेडकर थ्रू दिस असेंबली. और वो इस असेंबली में सबको टीचिंग कर रहे हैं लेबरसली, हार्डवर्क की जैसे उन्होंने हार्डवर्क किया है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, वैसे ही वो हमको भी बोल रहे हैं कि हमको इक्वालिटी लाने के लिए वी हैव टू बी स्ट्रांगली स्टैंडिंग, स्पेशली द यूथ ऑफ आवर नेशन शुड स्ट्रांगली स्टैंड एंड say that there is no casteism, no regionalism, no hero worship, because it is going to eventually collapse the nation. ठीक है, ये हमारा नेशन कोलैप्स कर सकता है. दैट हियर इट हैज़ बीन सेड. तो ये हमारा फर्स्ट पैरा का हो गया. नाउ 37 पेज नंबर का लास्ट पैरा आप प्लीज लुक एट. Second thing, what is the second thing that B.R. Ambedkar is saying? We are wanting in is recognition of the principle of fraternity. अब fraternity का meaning क्या होता है? We all know fraternity means a sense of common brotherhood among the people of a country. ठीक है, तो sense of common brotherhood among the people of a country, मतलब हम सब में ना एक brotherhood की भावना होना चाहिए, brotherhood और sisterhood, मतलब इक्वालिटी का. ठीक है, ना तुम ज़्यादा ना मैं ज़्यादा, हम सब इक्वल हैं, हम सब नेशन के डेवलपमेंट के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं. ठीक है, वॉट डज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी मीन्स मालूम है, द फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस, सपोर्ट. मीन, इसका मीनिंग क्या है? फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल द इंडियंस. हम सब इंडियंस को एक समझ में आना चाहिए कि हम सब इक्वल इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. If Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity. Solidarity means, underline the word, write down the meaning, unity. Unity, ठीक है, unity in diversity पता होगा, unity to social life. तो बी आर अम्बेडकर सर हमको इसमें सिखाना चाहते हैं कि इंडियंस को सबसे पहले समझ में एकजुटता जो बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाने के लिए ये समझना होगा कि हम सब एक हैं. ठीक है, हम वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. कोई भी हाई पोस्ट पे नहीं है, लो पोस्ट पे नहीं है, सब इक्वल है, सब नेशन के डेवलपमेंट के लिए हार्ड वर्क कर रहा है. सो वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंडियंस एंड वी ऑल आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर द नेशंस डेवलपमेंट. दैट शुड बी देयर इन द पॉइंट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग. देयर इज नो रिच नो पुअर, वी ऑल आर वर्किंग हार्ड. एक फार्मर का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है. तो सबका उतना ही इंपॉर्टेंट है, सब देश को डेवलप करने में लगे पड़े हैं. तो ये समझना चाहिए कि हम सब एक brotherhood, we are united, we are in the part of the fraternity where we are together for the nation's development. ये बी आर अम्बेडकर हमको सिखा रहे हैं. How difficult it is can be realized from the story related by James Barris.
in his volume on American Commonwealth about the United States of America. चलो एक एग्जाम्पल उन्होंने यू कैन सी बी आर अम्बेडकर सर, मैंने बोला ही वॉज अ वोराशियस रीडर, बहुत बड़े रीडर थे, और उन्होंने रीडिंग के थ्रू एक फिर से हमें एग्जाम्पल सिखाया है, ठीक है, कि फ्रेटर्निटी, हाउ वी कैन ब्रिंग क्लोजली बाउंड द सोसाइटी एंड मेक द सोसाइटी स्टेबल। फ्रेटर्निटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वी शुड बाइंड द सोसाइटी टुगेदर एंड देन वी कैन होप फॉर द हारमनी, तभी हम हारमनी के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए उन्होंने चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमको ये चीज़ सिखाया है। किसका एग्जाम्पल दिया सी? जेम्स बैरस इन हिज वॉल्यूम ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ, उन्होंने एक बुक लिखा अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखा। और वो स्टोरी क्या था पता है? देखो, द स्टोरी इज आई, पेज नंबर 37 टर्न, proposed to recount it in the words of Barris himself that असेंबली में बी आर अम्बेडकर बैरस का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उनका स्टेटमेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट है। सम ईयर्स अगो द अमेरिकन प्रोटेस्टेंट, सी द पेज नंबर 38, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च में आप देखोगे was occupied by its terrennial convention in रिवाइजिंग इट्स लेटर्जी। टेरिनियल का मीनिंग दिया है, इट मीन्स 300 एनिवर्सरी था, और अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च में आप देखोगे 300 एनिवर्सरी था, और पोप्स वर देयर, दे वर वर्शिपिंग टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और वहाँ पे वो लोग लिटर्जी, इट मीन्स राइट्स प्रिस्क्राइब बाय पब्लिक वर्शिप पे, मतलब दे वर वर्शिपिंग टू द गॉड, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, इट वॉज थॉट डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमंग द शॉर्ट सेंटेंस प्रेयर्स अ प्रेयर फॉर द वोल पीपल एंड एन एमिनेंट न्यू इंग्लैंड विच इज़ इन अमेरिका डिवाइन प्रपोज द वर्ड्स। वहाँ पे आप देखोगे बैरस जो थे वो जब वहाँ पे प्रेयर्स चल रहा था क्रिश्चियंस का 300 ईयर्स एनिवर्सरी का, तो फिर वो लोग राइट्स परफॉर्म कर रहे थे, दे वर वर्शिपिंग, प्रेयर्स वर हैपनिंग, और वो लोगों ने एक प्रेयर स्टार्ट किया। वो प्रेयर का स्टार्टिंग वर्ड क्या था पता है? व्हाट वाज द डिवाइन प्रपोज्ड वर्ड्स, स्टार्टिंग वर्ड्स ऑफ द प्रेयर। प्रेयर का स्टार्टिंग वर्ड उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया पता है? ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन। पहला स्टेटमेंट क्या वो लोगों ने स्टार्ट किया, जो वहाँ के पोप थे, ठीक है, द पर्सन हु इज़ अ क्लर्जीमैन। जैसे हिंदुइज्म में आप देखोगे पंडित वगैरह रहते हैं, वो कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, वैसे इन क्रिश्चियनिटी इफ यू वुड सी देयर इज फादर इज, और फॉर एग्जांपल बिग चर्च है जैसे ये अमेरिका का, तो वहाँ पे यू कैन सी दैट पोप इज देयर, ही वाज यूजिंग द स्टेटमेंट स्टार्टिंग द प्रेयर, एंड द प्रेयर स्टार्टिंग वर्ड्स आर एज फॉलोज, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन। उन्होंने क्या बोला? ओ लॉर्ड मेरे नेशन को ब्लेस करो। Accepted one afternoon on the spur, underline the word, it means encourage of the moment. The sentence was brought up next day for reconsideration when so many objections were raised by the laity means members of a religious committee, to the word nation as importing to definite a recognition of national unity, that it was dropped and instead there was adopted the words, O Lord bless this united nation। जब भी वहाँ के जो पोप थे उन्होंने जब ये प्रेयर स्टार्ट किया, जो स्टेटमेंट उन्होंने यूज़ किया, द स्टेटमेंट वॉज ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन। नेक्स्ट डे जब ये सबको प्रेयर पता चला तो स्पेशली ऑल पीपल स्टार्टेड मेकिंग द क्रिटिसिज्म, सबने इसका क्रिटिसाइज किया, वहाँ के सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, दे ऑल कमेंटेड, स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी ऑल्सो, दोज हु आर द पार्ट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, जो बड़े बड़े और चर्च थे वो लोग ने भी इसका अगेंस्ट कहे कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों बोला कि ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन। इंस्टेड उस जगह पे क्या आना चाहिए? द वर्ड शुड बी ओ लॉर्ड ब्लेस आवर यूनाइटेड नेशन। मतलब नेशन तो बहुत सारी नेशन है, पर वी आर स्टेइंग इन अ कंट्री, द नेम ऑफ द कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलो ना, मतलब यहाँ के पीपल इंपॉर्टेंट है। पोप को वो लोगों ने रियलाइज कराया, वहाँ के पीपल ने, कि यूनाइटेड स्टेट इज इम्पॉर्टेंट, डोंट टेक द नेम ऑफ द वर्ड
नेशन टेक द नेम ऑफ द वर्ड यूनाइटेड स्टेट्स, सेम वे हमारे नेशन में भी ओ लॉर्ड ब्लेस आवर इंडिया ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही वो लोगों ने इम्पोर्टेंस दिलाया कि हियर यूनाइटेड स्टेट्स प्लेस अ very important thing, so that if you would see plays a very important role, and that you can see he had made us realize, ठीक है कि ओ लॉर्ड ब्लेस these यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन पीपल, मतलब ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी पीपल कितने स्ट्रांगली वहाँ पे दे आर रिवोल्टिंग कि हम सब एक हैं, United States all people are equal, and if God is blessing, God should bless to the United States of America। तो ये हो गया सेंस ऑफ इक्वालिटी, ऐसा सुनते हो सोचते हो तो सेंस ऑफ इक्वालिटी फील होता है। सेम वे इन आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ 38 पेज नंबर, there was so little solidarity meaning is not given, please write down, a mutual support in the USA at the time when this incident occurred, that the people of America did not think that they were a nation। एक टाइम ऐसा था इंसिडेंट जब पीपल वहाँ के अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम था। आपको पता होना चाहिए अमेरिका में वाइट एंड ब्लैक निग्रोज, ब्लैक पीपल को निग्रोज बोलते थे, ठीक है, और रंग भेद का बहुत प्रॉब्लम था वाइट एंड ब्लैक कलर पीपल का। यू कैन सी देयर वाज सो मच ऑफ प्रॉब्लम, अमेरिकन्स हैड इवन फेस्ड दिस प्रॉब्लम, ओके। ऐसा नहीं कि वो लोग ने नहीं फेस किया, जैसे हमारे कंट्री में हमने कास्टिज्म, रीजनलिज्म वो आज भी हम फेस कर रहे हैं, वो लोगों ने भी कभी फेस किया है। सो दे डिड नॉट थिंक दैट दे वर अ नेशन, दे आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इफ द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट फील दैट दे वर अ नेशन, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर इंडियंस टू थिंक दैट दे आर अ नेशन। सो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्पेशली आप देखोगे कि फील होना चाहिए कि वो लोग एक नेशन है, जैसे वो लोग फील कर रहे हैं दैट दे आर वन, दे आर द नेशन, वननेस इज देयर। सेम वे हमारे नेशन को भी अब फील होना चाहिए कि हम भी, देयर शुड बी वननेस ऑफ इंटरेस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इफ यू वुड सी, दे इवन हैड फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ यू कैन सी कलर प्रॉब्लम दे हैड फेस्ड। सो इफ दे हैड फेस्ड, if you can see feel that they were not a nation, then how our India can feel that we are a nation? United States now you can see is a developed nation, is considered as the number one country। अगर वो country भी वो time पे feel किया कि there is not oneness of interest, then when we are going to feel, हमको भी यूनाइटेड नेशन की तरह सोचना समझना चाहिए। और वो लोग जैसे पूरा प्रॉब्लम क्रिएट था पर उसको क्लियर करके आज वो टुगेदर हो चुके हैं, दे आर डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग कंट्री। सेम वे वी आर ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट इट। सो B.R. Ambedkar is saying, I remember the days when the politically minded Indians resented the expression the people of India। बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक हमारे नेशन में भी एक दिन ऐसा आएगा व्हेन वी ऑल विल स्टैंड एंड से वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि आप अपने टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के प्रियम्बल में देखोगे तो यही स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स इंडियंस आर इम्पॉर्टेंट, इंडियन पीपल आर इम्पॉर्टेंट, दैट इम्पॉर्टेंस ही हैड पुट फोर्थ, ओके। ये वो हमको सिखा रहे हैं कि एक टाइम था जब इन अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम था, बट अमेरिका फिर से एक डेमोक्रेटिक नेशन डेवलप्ड होके आया। सेम वे हमको भी जैसे वहाँ पे लड़ाई हुई कि नेशन नहीं यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए, वैसे हमारे नेशन में भी इस बात को लेके हर एक ह्यूमन बीइंग में स्ट्रांगनेस फील आना चाहिए दैट वी द पीपल ऑफ नेशन इंडिया। दैट थॉट वुड बी देयर इन द माइंड ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग of our country India। I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion। Delusion meaning is given a mistaken idea or opinion। अगर हम ऐसे नेशन में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी भी कास्टिज्म वगैरह को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक और प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। हाउ कैन पीपल डिवाइडेड इंटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट बी इन अ नेशन? कैसे हम बहुत सारे कास्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। द सूनर वी रियलाइज दैट वी आर नॉट एज येट अ नेशन इन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ द वर्ड, द बेटर ऑफ अस। जल्दी से जल्दी अब समय आ गया दैट वी शुड रियलाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that
we all are the part of this society, and psychologically we should understand, we should have the sense in our mind that there is no casteism, no regionalism, no language, no, you can see, culturalism in our nation. There is only one culture, only one nation, only one thought is there, that is India country. The sooner we realize it is better for our nation. Yes, that here it has been said. For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of the ways and means of realizing the goal. उस दिन जाके हम कह सकते हैं कि हमारा नेशन बराबर बन गया है. That day we can say that our nation had become like a nation of America. Okay, seriously we can say that our goal is to make our nation developed. It is said that our nation would be developed, our nation would develop. हम हमेशा बोलते हैं, और जब डेवलप होगा, कब डेवलप होगा, जब हम सब ये रीजनलिज्म कास्टिज्म से बाहर निकल आएंगे और सबका एक ही गोल होगा, टू डेवलप, टू वर्क हार्ड, टू मेक आवर नेशन डेवलप्ड. तो ये चीज़ तब होगा जब हम कास्टिज्म के जो कीचड़ है, जो वर्स्ट थिंग है, उससे हम बाहर आ पाए. द रीजनलिज्म, द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. पर ये किस दिन हम रियलाइज करेंगे? व्हेन वी आर गोइंग टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ, यू कैन सी, डेमोक्रेसी. फार मोर डिफिकल्ट देन इट हैज़ बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखोगे, of course it was difficult, but still people, you can see, they had worked hard and they had come out from this problem. And today the United States has no caste problem. आज के present situation में आप B.R. Ambedkar is saying कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो कोई कास्टिज्म नहीं है, बट इन इंडिया देयर आर कास्ट. बट इंडिया में आज भी आप देखोगे, अभी भी आप देखोगे, बहुत सारे कास्ट है. द कास्ट आर एंटी नेशनल. एंटी नेशनल मीनिंग इज गिवन, दैट इज एंटी नेशनल expresses opposition to something. Okay, मतलब anti means something very difficult और anti social, anti psychological, anti political, मतलब जो हमारे nation को degrade कर रहा है, destroy कर रहा है, that is the casteism. In the first place because they bring about separation in social life. casteism अगर आ गया ना, मतलब anti social things are going to happen. मतलब क्या? Separate. Anti means something that it is going to separate. It is going to separate from our friends. It is going to separate from human being, one human being to another. casteism के वजह से हम एक human being से दूसरे human being अलग हो जाते हैं. डिफरेंट थॉट इज़ देयर, डिफरेंट थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ देयर. अलग अलग होने से हमारे में लड़ाई होती है, वी फाइट. एंड अगर इस किसी नेशन में इस टॉपिक को लेके अगर झगड़ा होता है तो वो नेशन किधर डेवलप होगा? दैट नेशन, स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर, इज नेवर एवर गोइंग टू बी डेवलप्ड. सो दे आर एंटी नेशनल एंड ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट द जेलसी एंड एंटीपैथी. एंटीपैथी, अंडरलाइन द वर्ड, इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एंड अपोजिशन. और अगर कास्टिज्म हो गया, बढ़ के अगर आ गया, और अगर हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं समझा और कास्टिज्म में हम लगे पड़े रहे, तो इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय द नेशन. और उससे क्या होता है? जेलेसी होती है, फीलिंग, नो फ्रेटर्निटी वुड बी देयर, नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग इज देयर. वी जस्ट टेक द रिवेंज. मैंने बोला ना, एक ह्यूमन बींग दूसरा ह्यूमन बींग का दुश्मन हो जाएगा. और अगर हम अपने नेशन में झगड़ते रहे तो हमारा नेशन कब डेवलप होगा? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डेवलप्ड. और इसका यूटिलाइज क्या होगा कि अदर कंट्री हमारे पे आके रूल करेगी, जैसे ब्रिटिशर्स आके हमारे पे इतने साल रूल किए. तो ये सेंस ऑफ एंटीपैथी है. एंटीपैथी मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. अगर हम लोग कास्टिज्म को इतना इंपॉर्टेंस देंगे तो डेफिनेटली वन डे विल कम दैट वी आर गोइंग टू डिसलाइक ऑल द ह्यूमन बीइंग. ओके, बिटवीन द कास्ट एंड द क्रीड. क्रीड मतलब होता है बिलीफ. सो देर इज नो कास्ट एंड क्रीड. बी आर अम्बेडकर इज सेइंग, समझो कि कास्ट क्रीड है ही नहीं, वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल. लाइक यू कैन सी शूद्रास और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आर हैविंग द इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी, सेम वे ब्राह्मण्स आर ऑल्सो हैविंग द सोसाइटी, सेम वे क्रिश्चियंस आर having the importance in society, same way Muslims are having the importance in society. All human beings are having the equal importance. Why we are not understanding this simple statement? Next page number 39. But we must overcome all these difficulties. हम आ सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर सकते हैं. We can overcome from these difficult problems and we wish to become a nation
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रियलिटी में भी हम इस नेशन को टुगेदर बना सकते हैं. वी कैन मेक द नेशन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी व्हेन इफ वी कम आउट विद दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म, क्रीड, कल्चरलिज्म, ये सबसे अगर बाहर आ जाते हैं तो हम नेशन को रियलिटी में नेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया नेशन वी कैन मेक. सो फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड? फॉर दैट फ्रेटर्निटी कैन बी द फैक्ट only when there is a nation. तो ये सब के लिए क्या ज़रूरत है? What is required is the fraternity. Fraternity means क्या होता है? Sense of brotherhood, sense of togetherness, belongingness, helping each other, caring each other, sharing each other. If we all people have the same sense, we do not bifurcate or differentiate on the name of caste, और jealousy नहीं करना दूसरे caste और religion और लोगों से. तो अगर ये सब हम करते हैं तो हमारा nation एक particular प्रॉपर नेशन बन सकता है. विदाउट फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी देयर विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट. आप देखोगे आप नेशन को कितने भी पेंट से, जैसे आप एक पिलर्स को बहुत सारे पेंट, डिफरेंट कलरफुल पेंट लगा दो, पर अगर वो पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, और वो स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब वो पिलर स्ट्रांगली बिल्ट हो. सेम वे इफ अ नेशन को इनडायरेक्टली कंपेयर किया पिलर से. इफ वी वांट टू मेक द नेशन वी रिक्वायर दैट द पिलर्स आर स्ट्रांगली बिल्ट अप विद द फ्रेटर्निटी, विद द सेंस ऑफ इक्वालिटी, विद द सेंस ऑफ लिबर्टी. अगर ये रहते हैं देन ओनली वी कैन से दैट building like nation is going to be alive long for a longer period of time. जैसे हमको पेंट की ज़रूरत पड़ती है एक बिल्डिंग को यू कैन सी शाइन करने के लिए, सेम वे वी जस्ट डोंट वांट, यू कैन से सिर्फ पेंट के लिए नहीं चाहिए हमको कि हमारे में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है. हमको रियली यूटिलाइज करना चाहिए अवर द राइट्स given by these important people like B.R. Ambedkar, that we all are equal. We all are equal in front of the constitution. There is a sense of fraternity, there is a sense of equality, there is a sense of liberty. तो ये thought अगर हमारे में रहता है then only our nation would be developed. तो ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, अंडर कंप्लीट होता है, where B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar is saying without fraternity, without brotherhood, without equality, without liberty, we are not going to stand in our nation, and we cannot make our nation be the nation of our country India. तो nation country India को बनाने के लिए must remember what is required is this thought that we all are equal. okay? और एक और important चीज़ यहाँ पे क्या बोला है, जैसे बिल्डिंग को पेंट करते हो आप, कितना भी शाइन कर लो, पर क्या चीज़ ज़रूरी है मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी. हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए वी रिक्वायर दीज 3 important थिंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट हियर इट हैज़ बीन सेड. So now let's start icebreaker questions. For understanding we will do so that the chapter would be more clearer. First one, discuss with your partner and choose the correct alternative. So let's see how many could give the answer. Government of the people, by the people and for the people. This quotation shall not perish from the earth. ये quotation किसने बोला? This famous statement is made by Mahatma Gandhi, B. Nelson Mandela, C. Abraham Lincoln, or D. Dalai Lama. So the correct answer is written in the slide, Abraham Lincoln. Please write down icebreaker questions in your notebook. Whenever the college will reopen, I am going to check it. Okay. Second, a system where the government is elected and ruled by people is called A. Bureaucracy, B. Aristocracy, C. Democracy, D. Autocracy. So the answer is democracy. Next is third, a democratic country is governed by its. So options are A. military, B. police, C. politician, D. constitution. So the correct answer is constitution. Okay. Next one, the tyranny of democracy comprises 3 principles. Complete web to show the tyranny of democracy. I think in teaching I had said the tyranny of democracy is liberty, equality, fraternity. Is that clear? Now come to the match the following. You have to match. You can see 2 columns are there. Match the following A and B. So directly we will see the answer. Constitution, the correct answer is D. It is an aggregate of fundamental principles or established precedents that constitute the legal basis of a polity
organization or other type of entity and commonly determine how that entity is to be governed. Next is liberty. Liberty, the correct answer is A. It is the freedom to go where you want, to do what you want to do, etc. Okay. Third is equality. So the correct answer is B. It is the state of being equal, especially in status, rights, or opportunities. Last is fraternity. Only one is remaining, and that is C. It is a sense of common brotherhood. Okay. So next we will move. It is third one. It is personal type. Pillars form a support for concrete building. Metaphorically speaking, a strong nation too depends on strong pillars. अभी इसलिए बताया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमको सॉल्व करना चाहिए. डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्स्टिकल दैट आर थ्रेट टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है. पहला, हमारे पिलर्स डेमोक्रेटिक नेशन के क्या हैं, और दूसरा बोला है कि डेमोक्रेटिक नेशन के लिए ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ना ध्यान दो स्टूडेंट. हमारे चार आप देखोगे डेमोक्रेटिक नेशन के ना पिलर्स हैं. मस्ट रिमेंबर, इन आवर डेमोक्रेटिक नेशन देयर आर 4 पिलर्स. फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव, third one is judiciary, and fourth one is press. First one is legislature. Legislature is an indispensable part of a democratic government. Okay, the legislature includes the parliament and the state and assemblies. मतलब आपने लोकसभा और राज्यसभा तो देखा ही होगा. तो legislature मतलब वो होता है जहाँ पे जनता द्वारा इलेक्टेड लोग नॉमिनेट होते हैं और वहाँ पे वो लोग बनते हैं for 5 years. Next is executive. What is executive? The president, the prime minister, his cabinet, bureaucrats, and the executive that form the second pillar of democracy. The next is judiciary. Judiciary means हमारे नेशन में आप सबसे ज़्यादा देखो तो एक अच्छी चीज़ है कि लॉ है. वी फॉलो द लॉ. तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑल इट इज़ देयर. सो जुडिशरी लुक्स आफ्टर द एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग. दे आर द पिलर्स वी कैन से, ओके, फॉर द जस्टिस. और लास्ट हमारे नेशन में अगर आप देखोगे तो प्रेस मतलब मीडिया डिपार्टमेंट. ओके, जो भी रॉन्ग थिंग्स हो रहा है दे एग्जिबिट, दे प्रेजेंट. ओके, तो उससे कुछ भी मिस्टेक्स या प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको पता चलता है. तो 4 पिलर्स क्या हो गया? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्रेस आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन इंडिया. अभी ये सब में ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है? So problems would be many. Okay, so we will see the some problems which are actually you can see create lots of problem, and they are as follows. Communism, casteism अभी सिखाया. Excessive pride for language, regionalism, economic differences, terrorism, racism, large growing population, gender inequality, corruption, a lack of capital investment, a crushing level of debt. Okay, poor development of trade and commerce, illiteracy, inadequate technology, अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये मैंने कुछ थिंग्स आपको यहाँ पे, ब्लैक मनी एंड ऑल. ठीक है, इन्फ्लेशन आजकल ले सकते हो, इलिटरेसी भी ले सकते हो. तो ये सब है जो हमारे नेशन को डेमोक्रेटिक बनने के लिए ऑब्स्टिकल्स हैं, थ्रेट है फॉर आवर नेशंस प्रोग्रेस. सो दिस आई थिंक आफ्टर टेकिंग द अंडरस्टैंडिंग आप लोग ये नोटबुक में अपने प्रॉपरली लिखोगे. ठीक है, तो क्वेश्चन दो पूछा था. पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लिखना, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, third judiciary, and press. That is the fourth one, plays important role for the making our 4 pillars, making our democratic nation a strong pillar. ऐसा करके लिखने का है. लास्ट में आपको लिखने का है what are the obstacles. तो obstacles का मैंने पॉइंट्स आपको दे दिया, वो लिखने का है. ठीक है, सो आई थिंक ये आइस ब्रेकर यहाँ पे ख़त्म हो गया. अब ब्रेन स्टॉर्मिंग की टाइम आती है, तो आई थिंक आप लोग अब ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हो, और टफ भी नहीं है ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ वेरी ईजियर, and questions normally it is going to come from the text only. So write by your own brainstorming question in your notebook. Is that clear? Icebreaker I had already given, you have to write it that also in your notebook, and brainstorming also you have to write in your notebook. Till then
Read the chapter very carefully. Okay, I will end this lecture today over here. Read the chapter very carefully, write down icebreakers which I had done today in your notebook, and brainstorming you have to do it by yourself. All the questions write down by yourself. Okay, and enjoy learning. This is Garima Miss signing off. Stay home, stay safe.